third man, Dipesh Gali, cover point, extra cover, cover point, cover, mid-off, very stylish, very interesting field setting by Faik. There is a short fine leg. And now man at Statish mid on. Two men outside the ring. Man at long off, very wide-ish indeed, looked like extra cover. And man at mid-wicket orthodox. डीप एक्स्ट्रा कवर ही आप कह सकते हो जो लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी है, बिल्कुल काफ़ी वाइड है जैसा कि आपने बताया, और मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात किया गया है। तो ये दो ही खिलाड़ी इस सर्कल के बाहर है। तीसरे दिन की पहली गेंद लेकर बीपीएल सीजन 2 में तैयार होते हुए फाइक अंसारी। Faik Ansari. Facing him Prathamesh Thakre. Oh, start with the white. अच्छी शुरुआत नहीं कही जा सकती है फाइक अंसारी के लिए। देखिए कल उन्होंने पहले ओवर में 3 विकेट्स चटकाए थे, लेकिन उसके बाद उतना अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं निरंतरता का थोड़ा अभाव नजर आया है उनके प्रदर्शन में। And as far as Prathamesh Thakre also concerned, not a very good tournament for Prathamesh also. One of the key player. This time cuts that ball beautifully through the cover point boundary for 4. लाजवाब स्ट्रोक, कमज़ोर गेंद थी, जगह दे बैठे थे वहाँ पर फाइक अंसारी, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। बहुत अच्छी पोजीशन में आकर गेंद को कट किया है। बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी है, दोनों के बीच में से निकाला है बहुत ही शानदार तरीके से। कोई भी मौका नहीं था किसी भी फील्डर के पास रोकने का। 4 रन। The delightful stroke indeed, with given by bowler, goes his back foot is quite cut, slightly upish, but finds the gap very well. Ball is racing all the way to the cover point boundary for 4. 5 without loss. Sona Devi, Vihan Mitkumar losing a toss, batting first here. Faik Ansari charging from here. Bostu Prathamesh try to reverse shot. Ajay, I think not a sensible batting so far, because in first ball is quite cut, then try to reverse. हालांकि इस स्ट्रोक की कहीं ना कहीं आवश्यकता तो नहीं थी। वैसे देखा जाए तो फिर से विड उनको मिला था, लेकिन चूंकि वो रिवर्स खेलने का प्रयास कर रहे थे, ठीक तरह से खेल नहीं पाए। बल्ले के किनारे पर लगी थी गेंद, फिर से कट करने का अच्छा मौका था, लेकिन पहले ही मन बना लिया था वहां पर। Faik Ansari, this time a lovely looking cover drive. What a magnificent stroke. Picks on the off volley and firmly driven past the timing Mahesh Thakre all the way to the cover for 4. कमाल का स्ट्रोक, और इसीलिए तो ये चर्चा होती है कि इस तरह के स्ट्रोक्स आपके पास है तो फिर उल्टे स्ट्रोक्स खेलने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर ड्राइव किया है। ये देखिए बल्ले के बीचों बीच लेकर ऑल अलोंग द ग्राउंड कवर पर वहां पर डाइव लगाने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास हुआ था महेश ठाकरे द्वारा, लेकिन उनको बीट करती हुई गेंद निकल गई कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। Lovely looking carpet drive, firmly driven. He's in good commanding batting. He's on 8 and his score is 9 without loss. You're watching Super se Upar D1D Premier League Season 2. Faik, right arm over the wicket. This time improvised stroke. What a shot! Superb stroke indeed. All the way to the backward square leg for a 6 in style of Steve Smith. एक और अद्भुत स्ट्रोक खेला है प्रथमेश ठाकरे ने। धुआंधार शुरुआत देते हुए सोना देवी विहान मित कुमार टेमघर टीम को शफल किया, लॉन्ग वे शफल किया उन्होंने, लेकिन नजरें बराबर गेंद पर थी उनकी। लॉन्ग लेग की दिशा में ये सिक्सर, आज के दिन का पहला छक्का प्रथमेश ठाकरे के बल्ले से। टीम का स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। Now Mahesh Thakre and Bablu Patil having a word with Faik, and I think in first over Faik get not an advantage of due factor. And what a batting! First time Prathamesh Thakre looking in BPL, looking a very good batsman. देखिए पहले मैच में भी उन्होंने धुआंधार शुरुआत की थी। उज्जैर के विरुद्ध उन्होंने पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए थे। भले ही
निरंतरता का अभाव रहा है उनके प्रदर्शन में, लेकिन अच्छे टच में है ये देखने को मिला है। Faik Ansari. But this time reverse shot, switch it all the way to the point boundary for a glorious six. What a batting! What a batting in morning session from men from Wadet and one of the great all-rounder in Taluka cricket, Prathamesh Thakre. ऐसे लग रहा है प्रथमेश को बैटिंग करते हुए देखते हुए कि बल्लेबाजी करना दुनिया का सबसे आसान काम है। जिस तरह से वो आसानी के साथ बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे हैं, स्विच इट किया, इस बार बल्ले के बीचों बीच लिया और भेज दिया मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। अद्भुत, अकल्पनीय, असाधारण बल्लेबाजी। So far 2 boundary and 2 sixes and his score is 21 without loss. This is the flying start and Dinesh Chaudhary is the happy man in dugout. Very happy indeed. Yes, Vian, Sonadevi, Vian Mitkumar needing this type of a start and very happy man OS Abi, the captain. Oh ho ho! Sweep dash ball through the backward square leg fence for 4. This is the amazing batting in first over from Prathamesh Thakre. कंडीशंस कैसी है, परिस्थितियां कैसी है, यहाँ पर बॉलर कौन है सामने, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है प्रथमेश ठाकरे को। वो अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए, ये रिस्की स्ट्रोक जरूर था क्योंकि स्टंप टू स्टंप ये गेंद थी, फुलर लेंथ, लेकिन बहुत ही बढ़िया संपर्क एक बार फिर से स्लॉक स्वीप किया है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में 4 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी पहले ओवर में किए, सूरज भी निकल चुका है, झांक चुका है देखने के लिए इस तरह की बल्लेबाजी को। एक ओवर रन बने सिल्वर जुबली, फाइक बहुत महंगे साबित हुए, 25 रन दे डाले। बिल्कुल भी अपने चिरपरिचित अंदाज में फाइक अंसारी गेंदबाजी कर नहीं पाए। आपने एक बात गौर की होगी सिद्दीक जी कि उनका पेस जो है वो भी थोड़ा कम नजर आया। आमतौर पर जितने तेज रफ्तार के साथ फाइक अंसारी बॉलिंग करते हैं उतने तेज रफ्तार से वो बॉलिंग नहीं कर पाए। गेंदों की लाइन और लेन पर भी नियंत्रण देखने को नहीं मिला और उसका भरपूर फायदा उठाया है प्रथमेश ठाकरे ने। ऐसा लगता है कि वो घर से ही सेट होकर आए हैं इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए। 25 बिना किसी नुकसान के सोना देवी विहान मित कुमार। देखिए उनका ताल्लुक वारेट से और उनके बल्लेबाजी का हम रेट नहीं लगा सकते। क्या बल्लेबाजी की है। एक छोटा सा गांव है अंबाड़ी परिसर में वारेट, वहां से बिलोंग करते हैं प्रथमेश ठाकरे और बीआरपीएल में भी उनका प्रदर्शन गजब का रहा था। 4 लगातार मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार उन्होंने अपने नाम किए थे। लीग टूर्नामेंट्स में भी ये खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। इस टूर्नामेंट में हालांकि अभी तक उतने अच्छे फॉर्म में तो नजर नहीं आए थे, हालांकि टच उनका अच्छा देखने को मिला है, लेकिन लंबी पारियां खेल नहीं पाए हैं। आज मौका है उनके पास एक बहुत लंबी पारी खेलने का, शुरुआत गजब की है। यस, मरता क्या ना करता गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से अब प्रमोद मात्रे, एक्सपीरियंस का भंडार। इस मर्तबा आगे रखा था, गेंद को खेलना चाहते थे कुमार गुण, बच गए वहां पे, बाल बाल बच गए। देखिए अजय गरत प्रमोद मात्रे ने भी इस सीजन में हैट्रिक किया BC4 फॉर्मेट में और गजब के खिलाड़ी हैं, गजब के। प्रमोद मात्रे, दीपक मडवी, संतोष मडवी, यशपाल माली, ये वो नाम है जो लगातार बढ़ती उम्र के साथ बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। प्रमोद मात्रे छोटे रनअप से आते हुए, कुमार गुण को स्वीप की कोशिश ऊपर लगी है लेकिन किस्मत वाले रहे कि नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। 1 रन स्कोर में आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के। व्हाट अ स्टार्ट। बहुत बढ़िया स्टार्ट है ये बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, लेकिन इस ओवर की शुरुआत अच्छी की है गेंदबाज प्रमोद मात्रे ने। बहुत अधिक रफ्तार से तो नहीं करते हैं, लेकिन अनुशासन हमेशा देखने को मिलता है उनकी बॉलिंग में। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। फैसल शेख फैम टीम FS एंटरप्राइजेस और महबूब गौरी फैम टीम राजस्थान रॉयल। ये दोनों टीमों के लिए भी करो मरो का मैच है। आज के सभी मुकाबले बहुत महत्वपूर्ण मुकाबले होने वाले हैं क्योंकि आज ग्रुप ए का अंतिम दिन है। ग्रुप ए के मैचेस आज खत्म होने वाले हैं इस BPL सीजन 2 में और कल से ग्रुप बी के मैचेस यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है, स्ट्राइक प्रथमेश के पास है।
क्योंकि दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है। 3 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर हैं। स्विच हिट के लिए स्क्वाडिश थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। इस मर्तबा निकल के मारा है गेंद को कवर बाउंड्री के बाहर। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक 4 रन। गजब की बल्लेबाजी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम प्रथमेश की। उन्होंने देख लिया था कि फील्डर्स कहाँ पर है बाउंड्री पर और कहाँ पर नहीं है। एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर था, जगह बनाई, ये देखिए ऑफसाइड को खुला किया और बहुत ही बेहतरीन लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, इनसाइड आउट, शानदार चौका। गेंद भी कमजोर थी, हाफ वॉली थी। काफी तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं। 28 पे पहुंचे प्रथमेश। इस मर्तबा ऊपर लगी है, गेंद आसमान में खड़ी रहेगी। बढ़िया कोशिश, लेकिन क्या छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर भी रूठा। वहां पर प्रीतम भोईर थे और ये महंगा पड़ सकता है। और बहुत सी टीमों को ये महंगा पड़ा भी है इस बीपीएल में। पहले दिन हमने देखा जब सागर तरे का कैच ड्रॉप हुआ था, उन्होंने आगरी राजा पोगाव टीम को मुकाबला जिताया। और कल भी ऐसा हुआ था, उमर खान का कैच 2 रनों पर ही छूटा था, उसके बाद उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। लेकिन सागर ठाकरे हमारे वीआईपी मंच पे, उनका हार्दिक स्वागत है। और ज़्यादा अच्छा एफर्ट वहाँ पर चाहिए था कहीं ना कहीं प्रीतम भोईर से। अच्छे फील्डर है, आउटफील्ड में अच्छे कैचेस लपकते हैं हमेशा, लेकिन इस दफ़ा गलती हुई है उनसे। सुकीला माफी नहीं। इस तरह की गलतियां बहुत भारी पड़ती है जब एक सेट बैट्समैन को आप उसका कैच छोड़ते। प्रमोद मात्रे विकेट लेते लेते रह गए। कुमार को फिर कठिनाइयों में डाला। फ्रंट फुट पे आके टर्न करने की कोशिश, दूसरे की कॉल है, दूर से खिलाड़ी आए। लेग बाई के 2 रन बनते हुए स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। सोना देवी विहान मित कुमार का 33 रन बिना कोई विकेट के। देखिए, जो लग रहा था कि थोड़ी बहुत नमी है उसका फायदा गेंदबाजों को मिलेगा, लेकिन कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है। नमी तो नहीं है, गेंदबाजों के लिए गमी जरूर है। लेकिन इस ओवर में अभी तक हम देखें तो अच्छी गेंदबाजी की गई है प्रमोद म्हात्रे द्वारा। प्रमोद म्हात्रे इस मर्तबा छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, टर्न कर दिया, 1 रन बना। दूर से झपटे हैं, खतरे को महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को वापस क्रीज में खींचा। क्या बल्लेबाजी हो रही है। 2 ओवर की समाप्ति। मैंडेटरी पावर प्ले में पावरफुल शुरुआत आप देख रहे हैं। रोहित और दिनेश चौधरी फैम टीम, सोना देवी विहान मित कुमार की। हालांकि टॉस जरूर आ रहा था उन्होंने। अजय कहाँ देख रहे हैं आप 6 ओवर में जिस तरह की शुरुआत है, 10 विकेट आपके हाथ में, मानो आपको बल्लेबाजी का लाइसेंस मिल जाता है। कम से कम यहाँ से मैं समझता हूँ कि बचे हुए 4 ओवर्स में और 55-60 रन जोड़ने का प्रयास ज़रूर हो सकता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके सारे के सारे विकेट सुरक्षित है। यदि प्रथमेश ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिकते हैं तो शायद और ज़्यादा रन्स बन सकते हैं। 90 मेरे ख्याल से एक ऐसा आंकड़ा है जो जहन में रहेगा इस समय बल्लेबाजों के 6 ओवर्स के खेल में। देखिए, एक और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि 2 अर्धशतक जो लगाए हैं वो दोनों ऑल इंडिया आइकॉन ने लगाए हैं, केतन म्हात्रे और उमर खान। देखना है कि भिवंडी तालुका क्रिकेट की तरफ से भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में कौन अर्धशतक लगाता है। और जहाँ तक सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का सवाल है तो वो भी केतन म्हात्रे के नाम है। रिकॉर्ड बालाजी ग्लोबस के आइकॉन प्लेयर, मैन फ्रॉम वाकलन, 110 रन। और 2 नंबर पर भी उनके ही बल्लेबाज है, सूरज केने, यानी कि उनके दोनों सलामी बल्लेबाज बहुत अच्छे फॉर्म में है। 103 रन सूरज केने के खाते में है। लेकिन बॉलिंग का जहाँ तक सवाल है तो वो हेमंत हरड़ है, 9 विकेट्स उनके खाते में है। आगरी राजा पोगाव टीम के लिए खेलते हैं। देखिए, भिवंडी प्रीमियर लीग की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी तो उन्हीं के नाम है, केतन और सूरज। केतन म्हात्रे, कोहिनूर हीरा कहा जाता है, कोहिनूर हीरा खिलाड़ी कहा जाता है उन्हें वाकलन में। बहरहाल अगले ओवर में मरता क्या ना करता, बॉलिंग में अब हुसैन को बुलाया गया। देखिए, हुसैन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से चमके, लेकिन एक खिलाड़ी से आप मैच या कप नहीं जीतते हैं, वो भी लीग मैचेस। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए कुमार गुंड को
इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला, स्टीयर किया डीपिच गली में, 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ 35 पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के, 35 विदाउट लॉस। कुमार भी अपना किरदार अब समझते हुए शुरुआत में कुछ आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन स्ट्रगल किया उन्होंने। और पिछली कुछ गेंदों से हम देख रहे हैं कि वो सिंगल्स के लिए ही ज़्यादा जाना चाहते हैं। स्ट्राइक कहीं ना कहीं ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास है यहाँ पर प्रथमेश ठाकरे को, जो कि बहुत ही बेहतरीन टच में नज़र आ रहे हैं। 8 गेंदों पर 29 पर इस समय बैटिंग करते हुए प्रथमेश। विकेट की सख्त ज़रूरत है इस समय गांव देवी 3 स्टार्स को। ओ बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा था, देखा कि स्विच हिट करना चाहते, गेंद की गति को भी परिवर्तन किया और बैट्समैन को फॉलो किया। पिछले ओवर से खेल थोड़ा सा धीमा ज़रूर हुआ है। प्रमोद महात्रे का ओवर इकोनॉमिकल रहा, 9 रन खर्च किए उन्होंने, और इस ओवर की शुरुआत भी अभी तक तो अच्छी कही जा सकती है हुसैन द्वारा। ये देखिए कहाँ गेंद कर बैठे हैं वाइट। गति में परिवर्तन किया था, फ्लाइट दिया था इस दफ़ा, लेकिन नियंत्रण बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर कर बैठे थे। कहा जाता है कि कमेंटेटर्स कर्स भी काम करते हैं, और कमेंटेटर्स जो कमेंट्री करता है उसको कुछ खिलाड़ी बहुत जल्दी पकड़ भी लेते हैं। गति परिवर्तन था, प्रथमेश ठाकरे सामना कर रहे। इस मरतबा बैकफुट पे गेंद पंच किया, गेंद कवर बाउंड्री की तरफ निकल रही है, 2 खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, अब जाकर रोका है उसे, लेकिन इस बीच 3 रन पूरे किए। इस शॉट को देखकर मानो ऐसा लगा कि हम टेस्ट क्रिकेट का शॉट देख रहे हैं, और मानो मार्क वा ने बैकफुट पे जाके पंच किया, हालांकि जगह नहीं थी। ये देखिए अंदर आती भी गेंद अपने आप को हल्का सा रूम दिया था। फुटवर्क बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, बहुत ही जारहाना अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं शुरुआत से ही प्रथमेश ठाकरे। बैट्समैन से रिक्वेस्ट है कि आपको विकेट पे नहीं दौड़ना है। इस मरतबा खींच के मारा है, हुक किया है गेंद को, आधा हुक आधा पुल, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। और खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदल दिया। और कहीं ना कहीं कमज़ोर गेंद की प्रतीक्षा कर रहे थे कुमार। इस बार मौका मिला, थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी, और क्रीज में बहुत पीछे खेलते हैं, उस वजह से कई बार गुड लेन पर भी जब गेंदबाजी होती है तो उसको पुल और हुक करने में सफल हो जाते हैं कुमार गुंड। ये उनके बैटिंग की विशेषता है। अल्ताफ बाली के ऑफिस के चीफ हमारे हारिस सैयद और तंजीम गोरेकर हमसे जुड़ चुके हैं, दोनों का इस्तेकबाल है। देखिए बल्लेबाजी बहुत लाजवाब हो रही है, और लग नहीं रहा है कि सुबह का मैच है, क्योंकि गेंदबाजी की तो शाम लग रही। समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है बीपीएल के इस दूसरे सीजन में गांव देवी 3 स्टार्स ठाकुरपाड़ा टीम के लिए। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है, एफएस इंटरप्राइजेस और राजस्थान रॉयल। फिर से आसमानी टोला, ये जाएंगी मैदान के बाहर सैर करने सुबह सुबह, 6 रन। दिस इज अ कुमार गुंड स्ट्रोक। अब क्या करेंगे गेंदबाज, अब तो कुमार की भी मार पड़ रही है, दोनों तरफ से मार पड़ रही है, एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई। देखिए ये शॉर्ट पिच गेंद तो नहीं है, लेकिन कितना खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया है उन्होंने। बहुत जल्दी ताड़ लिया था गेंद की लेंथ को, और क्रीज की गहराई का बहुत ही शानदार उपयोग कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में कुमार गुंड। 50 रन भी पूरे हो चुके हैं इस सिक्सर के साथ सोना देवी बिहान मित कुमार टिमगर टीम के, 51 बिना किसी नुकसान के। 15 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस शॉट को देख के थोड़ी देर मानो ऐसा लगा कि भिवंडी में मॉर्गन आ गए हो, इंग्लैंड के कैप्टन। हालांकि खराब गेंद नहीं थी, लेकिन शॉट बनाया वहाँ पे। हुसैन की भी सुबह सुबह खबर ली जा रही है। कुमार को खेलना चाहते थे, कवच में मोटा सिरा लेकर शॉर्ट थर्मेन पे गेंद जाती हुई, 1 रन। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 52। क्या धमाकेदार सुबह में शुरुआत हम देख रहे हैं सोना देवी विहान मित कुमार की। ड्रिंक्स ब्रेक चलता हुआ मैदान में मैं आज के मैचेस की रूपरेखा आपको देता चलूँ। अगला मैच एफएस इंटरप्राइजेस राजस्थान रॉयल। दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है टॉस बॉक्स में आपको तुरंत ही जुड़ जाना है। उसके बाद बालाजी ग्लोबस और सोना देवी विहान मित कुमार, उसके बाद एफएस इंटरप्राइजेस गांव देवी 3 स्टार, और ग्रुप ए का
आखिरी मैच रहेगा अगड़ी राजा पोगांव और राजस्थान रॉयल के बीच में। हम विशेष तमाम हमारे स्पॉन्सर हैं उनका धन्यवाद करेंगे। धनेश कुकसे, पांडुरंग धर्मा पाटिल, ओटो लाइफ पानी, A1 चिकन अतीक भाई, एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई, 70 तारीफ सैयद साहब, फुलटॉस कैरेट 24 बॉल्स के लिए अली असगर, साथ ही साथ रियल इस्टेट के, ये देखिए हमारे तमाम स्पॉन्सर को दिखाया जा रहा है, बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ रियल इस्टेट के वसीम अंसारी, लापास बुटीक, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाए। रियल स्टील ट्रेडर्स, घर की मजबूती के लिए एक ही नाम। और बहुत शुक्रगुजार हैं शुमाइल सूसे के, मुंबई तड़का एहसास दिलाए घर का, चाय ऐसी मानो आप घर में पी रहे हो। बहुत शुक्रिया शुमाइल। और साथ ही साथ फरहान पटेल ने जो आइकॉन खिलाड़ियों के लिए गिफ्ट हैम्पर दिया है, आपका भी शुक्रिया। बैक टू क्रिकेट। आक्रमण जारी रखते हुए कप्तान प्रमोद म्हात्रे, 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 52 रन बिना किसी नुकसान के। बढ़िया गेंद, इस बार गलत लाइन पर बल्ला चला बैठे थे, पैरों में हलचल देखने को नहीं मिली थी। फुटवर्क का इस्तेमाल किए बिना ही स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर कुमार गुंड द्वारा। जबरदस्त शुरुआत दिलाई है दोनों भी ओपनर्स ने। 32 पर प्रथमेश, 16 पर खेल रहे कुमार गुंड। यस, मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क, कहीं भी फुटवर्क नहीं था शॉट के पीछे। प्रमोद का पहला ओवर भी अच्छा रहा था। स्लॉक किया गेंद हवा में, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद और कोई गलती नहीं। कल्पेश पाटिल द्वारा विकेट का पतन होता हुआ पहला झटका लगता हुआ सोना देवी, विहान, मित कुमार टेमगर टीम को। बढ़िया बल्लेबाजी के बाद 16 रन बनाने के बाद कुमार गुंड आउट हुए। देखिए इतनी लोअर फुल टॉस गेंद को आप जब खेलते हैं तो अधिकांश बार होता है कि आप उसको क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया ओपनिंग पार्टनरशिप, बिग एंड देना चाहिए। कुमार गुंड आउट होकर आते हुए 9 गेंदों में 16 रन बनाए, 16। ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए थे स्ट्रोक में, फ्रंट फुट को आगे खींचा था उन्होंने, स्लॉक स्विप किया और सीधे फील्डर के पास भी खेल बैठे थे डीप मिड विकेट की दिशा में। कल्पेश पाटिल उर्फ बबलू ने वहां पर एक अच्छा कैच समाप्त किया और आखिरकार कप्तान ने ही पहली सफलता दिलाई है गांव देवी 3 स्टार्स ठाकुरपाड़ा टीम को। कप्तान भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। देखिए अजय, काफ़ी अनुभव है और कहा जाता है एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर, और वो फीचर आप देख रहे हैं। नए बैटर क्रीज पर पहुंचे हैं कासिम बाबू, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर। इस बार बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, लेकिन काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी है, गलती, बहुत बड़ी गलती, मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। लगता है कि महेश ठाकरे की नींद नहीं पूरी हुई है। 1-2 का 4, जहां 1 रन था वहां पर 4 रन दे डाले। देखते हैं क्या कुछ हुआ था। ऑफ स्टंप के बाहर से बहुत ही जबरदस्त हिट था कारपेट के सारे। ये देखिए दोनों हाथों और दोनों पैरों की दरार से गेंद फरार। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रमोद, लेकिन फील्डर्स का साथ मिलना भी बहुत जरूरी। स्लॉपी वर्क देखने को मिला और ये गेंद थोड़ी नीची रही थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और बाउंस पर चली गई। विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं। अपने आप से नाराज हैं, जिस तरह खेलना चाहते थे खेल नहीं पाए। प्रथमेश के पास मौका है इस मैच में अर्धशतक बनाने का। यहाँ से और 14 रन चाहिए। इस समय 36 पर बैटिंग कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन शुरुआत दिलाई है उन्होंने अपनी टीम को। अब तेज धूप निकली है मैदान में। और बढ़िया गेंद थी, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक और फील्डिंग भी उससे भी बढ़कर 1 ही रन। क्या सुपर से ऊपर लीग में सुपर से ऊपर हो रहा है। यॉर्कर लेन की गेंद थी, खोद के निकाला था हेलीकॉप्टर अंदाज में, लेकिन फील्डिंग भी लाजवाब। इसे कहते हैं कि तीनों जो क्रिकेट की खूबसूरतियां थी वो एक ही गेंद में नजर आई। जी हाँ, और इसी तरह का क्रिकेट दर्शक देखना पसंद करते हैं। गुड क्रिकेट ऑल अराउंड जिसे कहा जाता है।
कासिम बाबू पहली बार सामना करेंगे इस मैच में। बायत से बैटिंग करते हैं, बायत से बॉलिंग करते हैं। बहुत ही बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी है। पिछला सीज़न तो उनके लिए बीपीएल का बहुत बढ़िया रहा था और लगातार एक ही टीम के लिए खेलते हुए बीपीएल में। जबरदस्त प्रहार, 6 रन मिलेंगे। बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पिक कर लिया था और बहुत अच्छी पोजीशन में आते हुए बैकफुट पर जाकर पुल किया और छक्का जड़ा। क्या ज़बरदस्त शॉट खेला है, रिप्ले में हम देखना चाहेंगे कासिम बाबू ने। ये देखिए प्रमोद की ये गेंद थी और ये देखिए उतनी खराब गेंद नहीं थी, हल्की शॉट थी, बैकफुट पे गए, शॉट हम पुल पावरफुल। और वाकई में कसक तो हुई होंगी, नैन लड़ गई ये तो मनवा में कसक हुए पे खड़ी। क्या शॉट खेला है कासिम ने। सुबह सुबह स्कोर इस वक्त 63 रन। दिनेश चौधरी काफ़ी खुश हैं। डगआउट में टीम के कैप्टन अभी पाटिल, देखिए अभी पाटिल, माना कि उनका अपना परफॉर्मेंस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक कैप्टन ऐसे जो ग्राउंड में हाजिर दिमाग रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए जीत और हार पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन आपकी कप्तानी में भी दम चाहिए। अगली 2 टीमों को लास्ट ऑफिशियल कॉल है, एफएस इंटरप्राइजेस और राजस्थान रॉयल। मुजीब शेख हमारे काबिल दोस्त और अल्ताफ बाली सर के कज़िन हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। अंपायर फारूक बर्डी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तेकबाल है। ऑन फील्ड अंपायर शकील कोटी, अंपायर गोकुलदास पाटिल, अंपायर शानू कुरैशी, अंपायर फारूक बर्डी। सूरज अब पूरी तरह से आबोताब से चमक रहा है और चमक रहे बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे 37 पर पहुंच चुके हैं। मात्र 13 गेंदों का सामना किया है। कासिम बाबू ने पहली गेंद पर छक्का जड़ा है। दबाव नहीं है कासिम बाबू के ऊपर, क्योंकि सलामी बल्लेबाजों ने बहुत ही मजबूत नींव रखी है, बहुत ही शानदार आधारशिला रखी गई है सोना देवी बिहान मीत कुमार टीम के लिए। कुमार गुंड 16 रन बनाकर आउट हुए। 10 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 2 छक्के जड़े। पहले ही ओवर में इस मैच के 25 रन लिए गए थे प्रथमेश ठाकरे द्वारा। फाइक अंसारी की अच्छी खबर ली थी और अब फाइक अंसारी को दूसरा ओवर भी दिया गया है। देखना है इस ओवर में क्या वो वापसी कर पाते या नहीं। बॉलिंग एक बहुत बड़ी समस्या रही है पूरे टूर्नामेंट में गांवदेवी 3 स्टार्स ठाकुरपाड़ा टीम के लिए, क्योंकि एक तो चॉइस प्लेयर भी अवेलेबल नहीं है और आइकॉन प्लेयर भी अवेलेबल नहीं है। फुल टॉस, स्विंग किया ऑन साइड में, फील्डर देखते रह जाएंगे। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। घुटना टेक और सिक्सर देख, इस तरह की जब बल्लेबाजी होती है, और फाइक ने पहले ओवर में 25 दिए थे, हालांकि बीपीएल में उन्हीं के नाम खर्चीली गेंदबाजी है। 2 ओवर में मोर देन 40 प्लस और 45 रन दिए थे। ये देखिए घुटना टेक और सिक्सर देख। अजय, मैं आपकी मालूमात के लिए कहता हूँ कि माना कि स्टीव स्मिथ, मैक्सवेल, ये खिलाड़ी बहुत बाद में आए, स्टीव वॉ भी बाद में खेले, लेकिन इस शॉट को सबसे पहले खेलने वाले खिलाड़ी थे साउथ अफ्रीका के एक्स कैप्टन हंसी क्रोनिया। कमाल के कप्तान थे हंसी क्रोनिया। 137 मुकाबलों में उन्होंने कप्तानी की थी और उसमें से 99 वनडे इंटरनेशनल जिताए थे दक्षिण अफ्रीका को। बहुत ही सफल कप्तान रहे। बिल्कुल, लेकिन उनके जो स्मिथ कैप्टन, उनका रिकॉर्ड उनसे भी अच्छा है, ग्रैम स्मिथ का टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड जो है वो कीर्तिमान है कि 100 से अधिक टेस्ट मैचेस में वो कप्तानी कर चुके हैं। यस, इकलौते कप्तान है मेरे ख्याल से दुनिया में। यस, और ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि वो 434 का कमाल उन्हीं की कप्तानी में हुआ था। लेकिन यहाँ पर कमाल कर रहे हैं प्रथमेश ठाकरे, शुरुआत से ही पूरे कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। पहला चौका जो जड़ा था उन्होंने वो स्क्वायर कट के जरिए, उसके बाद एक बहुत ही शानदार कवर ड्राइव उन्होंने खेला था फ्रंट फुट पर, और उसके बाद एक बैकफुट कवर ड्राइव भी हमने देखा। एक से बढ़कर एक स्ट्रोक्स खेले उन्होंने, स्विच हिट भी लगाया है। जहां भी खेल रहे हैं तेजी से रन्स बना रहे हैं अपनी टीम के लिए प्रथमेश। 43 पर इस समय बैटिंग करते हुए, टीम का स्कोर 69 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बीपीएल का इंडिविजुअल स्कोर किसके नाम है? क्या उमर खान के नाम, क्या केतन मात्रे के? 55 केतन मात्रे के नाम है। रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए,
सुबह सुबह लाइन अप मानकोली भी हमसे जुड़ चुके हैं और कैप्टन माजिद बोबड़े एफएस के भी हमसे जुड़ चुके हैं। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है टॉस बॉक्स में आना है। राजस्थान रॉयल बनाम एफएस इंटरप्राइजेस। अगली गेंद लेकर फाइक। बढ़िया गेंद इस बार। प्रश्न पूछा गया लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेग बाई का इशारा। क्या इम्पैक्ट ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर था, देखना होगा। Yes, interesting to see in replay. The appeal reject by umpire Shakil Kutti. Yes, what a decision from Shakil. The impact is outside the off stump. रिवर्स खेलने का प्रयास किया था लेकिन एक अच्छी गेंद थी इस बार। रफ्तार भी बढ़िया रही थी और आगे रखा था फाइक ने। अब एंगल चेंज करते हुए राउंड द विकेट। खूबसूरत गेंद, खूबसूरत गेंद। और इसी की आप अपेक्षा करते हैं कि फाइक जैसे बड़े खिलाड़ी वापसी करे। देखिए बीपीएल में उनका परफॉर्मेंस मिला जुला रहा। कुछ बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की, सबसे खर्चीली भी की, कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और कुछ खराब शॉट्स। लेकिन जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं उतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं रहा उनका। अभी भी इस ओवर में 3 गेंदें शेष है। शॉट अंपोल, गेंद हवा में, ज्यादा ऊपर खेल बैठे हैं। डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात और कोई गलती नहीं प्रीतम भोईर द्वारा। बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर हासिल करते हुए फाइक अंसारी। कासिम बाबू आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए 70 पर 2। बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए और ये भी ऑफ कटर थी और थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी। क्रीज में बहुत पीछे खेल रहे थे। शॉट अंपुल किया जरूर लेकिन नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था स्ट्रोक पर। ज्यादा देर हवा में रही गेंद और एक अच्छा कैच डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक प्रीतम भोईर द्वारा। इससे पहले एक कैच ड्रॉप हुआ है उनके हाथों से लेकिन इस दफा कोई गलती उन्होंने नहीं की। 6 रन बनाकर आउट हुए हैं कासिम बाबू। टीम का स्कोर 70 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आज का ये पहला मुकाबला है। आज तीसरा दिन भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का और ग्रुप ए का ये अंतिम दिन है। कुल मिलाकर 11वां मुकाबला इस बीपीएल का। नए बैटर क्रीज पर पहुंचे हैं। नॉन स्ट्राइकर सेंड पर है। इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया है। मिड ऑफ पर कोई खिलाड़ी नहीं है। लॉन्ग ऑफ से बबलो आए लेकिन तब तक 2 रन पूरे। मिसफील्ड भी देखने को मिला, फंबल हुआ उनसे। चतुराई भरी बल्लेबाजी ये कही जा सकती है। हल्के हाथों से खेला था ये देखते हुए कि मिड ऑफ पर कोई खिलाड़ी नहीं है। और जब आप हल्के हाथों से खेलते हो तो गेंद ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती नहीं है फील्डर की तरफ। गति में अच्छा परिवर्तन कर रहे हैं इस ओवर में फाइक अंसारी। पहली गेंद पर छक्का लगा था लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की है। नए बैट्समैन योगेश आए हैं नॉन स्ट्राइकर सेंड पर। बढ़िया गेंद, अपना विकेट बचाया और उसके बाद 2 रन भी पूरे कर लिए हैं। बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए खेला और रनों की जो गति है उसको भी कम नहीं होने देना चाहते हैं प्रथमेश ठाकरे। 47 पर पहुंच चुके हैं। मात्र 17 गेंदों का सामना किया है और 5 ओवर के पश्चात सोना देवी विहान मित कुमार टेमघर टीम का स्कोर हुआ है 74 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों टीमों की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं सोना देवी की स्थिति ज़्यादा बेहतर है पॉइंट्स टेबल में भी, क्योंकि 3 मैचेस इससे पहले खेले हैं उसमें से 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 1 में हार मिली है। और गांव देवी 3 स्टार्स का खाता खुलना अभी बाकी है। 3 के तीनों मुकाबले हारे हैं उन्होंने। ये उनका चौथा मैच है, दोनों भी टीमों का चौथा मुकाबला है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि साख दाव पर लगी हुई है गांव देवी 3 स्टार्स ठाकुरपाड़ा टीम की। ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है क्योंकि ये मुकाबला यदि वो जीत नहीं पाए तो फिर लगभग चुनौती खत्म ही हो जाएगी। फिर तो इसके बाद तो एक ही मैच बचा है और यदि ये मुकाबला जीतने में कामयाब हो जाती है गांव देवी 3 स्टार्स तो ज़रूर थोड़ी बहुत उम्मीदें बरकरार रहेंगी इस बीपीएल सीजन 2 में। अभी तक का जो खेल हुआ है इस मैच में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी प्रथमेश ठाकरे द्वारा देखने को मिली है। अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक इस समय योगेश के पास, योगी मैन फ्रॉम अकलोली। और योगी भी अच्छे टच में नजर आए। पिछले मुकाबले में अंतिम ओवर में ही आए थे बैटिंग करने के लिए, 2 छक्के जड़े थे उन्होंने। बढ़िया स्ट्रोक,
प्रीतम की पहली गेंद, और प्रीतम एक ऐसे बॉलर रहे हैं इस टूर्नामेंट में गावदेवी थ्री स्टार्स की ओर से जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। कल भी जब 2 ओवर्स में 14 रन चाहिए थे विपक्षी टीम को, उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए थे और आखिरी ओवर में 8 रन बचाकर रखे थे। लेकिन अंतिम ओवर में उनके गेंदबाज उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए। हुसैन ने वो ओवर किया था, पहली गेंद डॉट भी रही थी लेकिन उसके बाद शॉर्ट गेंद की, फुरकान ने उस पर छक्का जड़ा था और उसके बाद वो मुकाबला गावदेवी थ्री स्टार्स जीत नहीं पाई। तो क्लोज मैचेस भी खेले हैं गावदेवी थ्री स्टार्स ने। यहाँ से बल्लेबाज चाहेंगे कि बची हुई 5 गेंदों पर कम से कम 15 रन बनाए जाए। कट करने की कोशिश, अच्छी गेंद थी है, कट होकर बाहर की तरफ निकली और थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी देखने को मिला। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा उछाल था बल्कि, और नेचुरल एंगल तो उनका बनता ही है। बायत के गेंदबाज है, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है, उसका फ़ायदा मिलता है। जब भी लेंथ पर बॉलिंग करते हैं, गुड लेंथ पर या फिर थोड़ा बैक ऑफ लेंथ रखते हैं तो बहुत अच्छा उछाल प्राप्त करते हैं। हालांकि हाई आर्म बॉलिंग एक्शन तो नहीं है, थोड़ा राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन है प्रीतम का, लेकिन बहुत ज़बरदस्त हाइट है उनकी। शफल करते हुए खेलना चाहते थे, फिर से ठीक तरह से खेल नहीं पाए प्रथमेश को बांध कर रखा गया है इस अंतिम ओवर में। जिस तरह से शुरुआत हुई थी पहले ओवर में 25 रन, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वापसी की है गेंदबाजों ने। प्रमोद ने अच्छी गेंदबाजी की है और प्रीतम का ये ओवर भी अच्छा घट रहा है। अब केवल 3 गेंदें पारी में शेष है, प्रथमेश को 3 रन चाहिए अर्धशतक बनाने के लिए। यस, ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है इस डेथ ओवर का। एक और खूबसूरत गेंद, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, शायद बल्ला लगा था वहां पर पिच पर, जिसकी आवाज गेंदबाज ने भी सुनी, विकेट कीपर ने भी सुनी। हालांकि सुभाष ठाकरे ने भी अपील की है, यस हेलीकॉप्टर स्टाइल खेलना चाहते थे बकौल अंपायर, द साउंड ऑफ बैट टच टू द पिच। और शायद बल्लेबाज के ट्राउजर से भी छूकर चली गई थी गेंद। कई निर्णय ऐसे होते हैं जो हम बार बार रिप्ले भी देखते हैं तो भी समझ में नहीं आता है हमें कि ये आउट है या नहीं, तो अंपायर के लिए सोचिए कितना मुश्किल होगा। इस बार ड्राइव किया है, मिड ऑफ ऊपर खड़ा है, उसके ऊपर से निकाल दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और इसके साथ ही प्रथमेश ठाकरे का अर्धशतक पूरा। तीसरे बल्लेबाज बने हैं बीपीएल सीजन 2 में जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली है। शानदार बैटिंग, ग्रेट बैटिंग, इनक्रेडिबल बैटिंग इन मॉर्निंग सेशन। ये आप देख सकते हैं, उन्होंने अर्धशतक 21 गेंदों पे लगाया और 2 सिंगल्स, 2 डबल्स, 1 3 रन और 6 चौके और 3 सिक्सर, यानी मिश्रण है क्लासिकल और हिटिंग बल्लेबाजी का। और भिवंडी के पहले बल्लेबाज है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बीपीएल सीजन 2 में अर्धशतक जमाया है। इससे पहले जो 2 अर्धशतक हमने देखे, दोनों भी आइकॉन प्लेयर्स द्वारा, पहला केतन मात्रे द्वारा बालाजी ग्लोबस के लिए और दूसरा एफएस के लिए उमर खान द्वारा। हवा में खेला है, कैच बन सकता है, डिप स्क्वायर लेग पर ऋषभ मौजूद है, बढ़िया कैच, रिवर्स कर्व में कैच लिया गया है। और अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद पेविलियन में लौटते हुए प्रथमेश ठाकरे, तीसरे विकेट का नुकसान सोना देवी विहान मित कुमार टेमगढ़ टीम को। कमाल की बल्लेबाजी करके वापस आते हुए बिग एंड देना चाहिए, व्हाट इनिंग। ये देखिए किस तरह से आउट हुए, गेंद में उछाल कम था और शॉट में ऊंचाई ज़्यादा थी। और इसके साथ पारी भी समाप्त हो चुकी है। आखिरी ओवर प्रीतम का लाजवाब रहा, केवल 5 रन खर्च किए उन्होंने, तो ये एक मौका उन्होंने भी दिया है अपनी टीम को पलटवार करने का। बल्लेबाजों को ज़रूर काफ़ी अच्छी बैटिंग करनी होगी। 51 रन बनाकर आउट हुए हैं प्रथमेश, बहुत ही खूबसूरत पारी खेली है, 22 गेंदों का मात्र सामना किया। कुल मिलाकर 79 रन बनाए गए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर, और जीतने के लिए 80 रनों का लक्ष्य रखा गया है इस मैच नंबर 11 में गावदेवी थ्री स्टार्स ठाकुरपाड़ा टीम के सामने। यस, अगले टॉस के लिए हम तैयार हो रहे हैं। पिछले बीपीएल में अकबर शेख ने भी अर्धशतक लगाया था, मतीन खान ने लगाया था, साथ ही साथ फाइक ने भी लगाया था। दोनों कैप्टन इस वक्त मेरे साथ हैं। ऑल द बेस्ट मिसाइल, भिवंडियन मिसाइल उजैर, एंड ऑल द बेस्ट डीकॉक ऑफ भिवंडी माजिद बोबड़े। मैच रेफरी अजीम हमदुल्ला आपको जुड़ जाना है, और कमेंटेटर अजय घरत मुझसे जुड़ चुके हैं, और हरीश ठाकरे, सागर ठाकरे साहब
आपको टॉस के लिए आना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर, फिटनेस भी देखिए, एक क्रिकेटर के लिए होना चाहिए। अजीम अब्दुल्ले ये टॉस थमाते हुए मैच रेफरी। एक तरफ बीपीएल 2 सीजन 2 जिसकी चर्चा सभी जगह हो रही है, सुपर से ऊपर लीग, और एक तरफ आप देख रहे हैं वो कमेटी जो 2015, 16, 17 में मंजर आम पे आई और जिसने पूरे हिंदुस्तान में क्रिकेट को वेल ऑर्गेनाइज किया, वेल डिसिप्लिन। बीपीएल कहना है राजस्थान रॉयल के कैप्टन उजैर का, और यस बकौल मैच रेफरी टॉस को जीता है राजस्थान रॉयल ने। बहुत धन्यवाद ठाकरे साहब। उजैर गुरु पे के आज मैचेस जैसे जैसे इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, धड़कनें तेज हो रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैच आप खेलने जा रहे हैं, टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करें। रीज़न बता सकते हैं? नहीं, सुबह का टाइम है, हवा भी थोड़ी कम है और अच्छी बॉलिंग करके कम से कम में रोकने की कोशिश करेंगे। उजैर आपको क्या लगता है कि पिछले जो मैचेस थे उसमें क्या कमी रहेगी? फील्डिंग भी थोड़ा ख़राब हुआ और बैटिंग भी बराबर हो नहीं पाया। 70 रन जो है वो चेज़ होने जैसा था इधर, बट अभी उसे भूल के इस मैच पे फोकस करना है और पहले इसे अच्छा खेल के जीतने की कोशिश करना है। देखिए कामरान खान जो आइकॉन इंडिया है बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इस मैच में एज अ कैप्टन क्या उम्मीद है आप उनसे रख रहे हैं? कामरान से भी बहुत उम्मीद है और जितने प्लेयर है सबसे उम्मीद है, जो भी ग्राउंड पे खेल रहे हैं सबको अपना 100% देना है, अच्छा खेलना है। आउट तो सबको करना चाहेंगे एफएस के आप, लेकिन टारगेट पे कौन रहेंगे? माजिद है, उमर भाई है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ये हमारे टारगेट पर रहेंगे। ऑल द बेस्ट। माजिद, टॉस आपने गंवाया है, आपको पहले बल्ले Manere, Rahul Bhoir is there. Hello. Thank you so much, Siddiqji Babe sir. Thank you so much, Ajay Gharat. व्हेरी गुड मॉर्निंग सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून BPL सीझन 2 त्यामध्ये सुरुवात झाली आहे। आजचा सलग तिसरा दिवस आहे आणि पहिली मॅच आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये। दरम्यान दोन टीममध्ये गावदेवी त्रिस्टार ठाकूरपाडा त्यांच्या अगेन्स्ट सोनादेवी। सोनादेवी वियान मित कुमार टेमगर अशी ही मॅच मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला दरम्यान पाहायला मिळते। पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना चांगला खेळ आपल्याला पाहायला भेटला। एकूण 6 षटकामध्ये धावा बनवल्यात, 79 बनवल्या होत्या। 79, 3 विकेट आणि 80चं टार्गेट या मॅचमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी। 30 स्पोर्ट्सनं मात्र भरपूर संघर्ष या नक्कीच BPL सीझन 2 मध्ये केला। चांगला खेळ करावा लागेल नक्कीच। अजूनही विजयाचा अकाउंट खुला झाला नाही। गेम प्ले, पहिला बॉल बबलू पाटीलसाठी जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न होता। ओव्हर द विकेटनं हा चेंडू आपल्याला पाहायला भेटला। बाकफुला जाऊन स्वारकाट खेळण्याचा प्रयत्न केला बबलू पाटीलनं। चेंडूने बॅटचा संपर्क दरम्यान आला नाही। चांगला आपल्याला चेंडू पाहायला मिळतो। पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज आमच्या सोबत कमेंट्री बॉक्समध्ये सिद्दिकजी बाबे सर।
यस धन्यवाद राहुल, कैसा लग रहा है बीपीएल का पार्ट बनने के बाद? खूप मजा येणार आज कॉमेंट्री करायला. सर्व दिग्गज कॉमेंटेटर आहेत, त्यांच्यासोबत भरपूर काय शिकायला मिळेल. या दरम्यानचा हा फटका चांगला आहे, इनफिल्डच्या वरून काढला चेंडू, जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बीपीएल चौकार. क्या शॉट खेला है, निकल के मारा है. ये इनका बहुत ही स्ट्रांग जोन है. बबलू पाटिल वंडर बॉय ऑफ पीटीसी. ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद की पिच तक गए थे, निकल के मारा गेंद को कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में. बहुत ही दिलकश स्ट्रोक. क्या बल्ले. इस शॉट को देखकर तो मानो मूड बन गया है क्रिकेट का, बीपीएल का. नक्कीच डेफिनेटली सिद्दीकजी. ओव्हर द विकेट ना, रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न, फटका चांगला आहे. तिथे डीप मध्ये कोणी फिल्डर नाहीये उपस्थित, जाईल चेंडू शॉर्ट मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते बबलू पाटीलच्या माध्यमातून. लागोपाठचा दुसरा चौकार. गुड शॉट. देखिए राहुल, जिस तरह की रिप्लाई चाहिए था उसी तरह का रिप्लाई बबलू पाटिल देते हुए. ये बहुत अच्छे टच में इस सीज़न में, और उनको पता है कि मैच को कैसे लेकर जाना है. प्रथमेश ठाकरे ने वार किया था, वार अब उन पे होता हुआ. ओव्हर द विकेट ना पोल केला हा फटका हवे. तमिस्तामिंग शॉर्ट फिल्डर दूर राहिले, मात्र तेवढी चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. स्वतःवरती नाराज आहेत बबलू पाटील. बोल करायचा होता हा फटका, हा पण बोलचा फटका आपल्याला पाहायला भेटला. लागोपाठच्या 2 चेंडूमध्ये 2 चौकार देखील आल्यात. आता मात्र जशास तसं प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये सुरू झाला. प्रयत्न करावे लागतील, कारण का विजयासाठी 80 धावांचा पाठलाग करायचा मॅचमध्ये. इस वक्त मेरे साथ मानेरी की आवाज़ है बीपीएल में राहुल भोईर. ओव्हर द विकेटनं महेश ठाकरेसाठी जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न. सिद्दीकची जागेवरनं खडे नक्कीच हा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. कुठल्या प्रकारचा फुटवर्क आपल्याला पाहायला मिळत नाही महेश ठाकरेच्या माध्यमातून. महेशनं भरपूर संघर्ष केला आहे नक्कीच बीपीएल सीझन 2 मध्ये या स्पर्धेच्या माध्यमातून. चांगला टचमध्ये नक्कीच तो आहे. ओव्हर द विकेटनं पुन्हा त्या जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. चेंडूची चांगली पिचिंग आपल्याला पाहायला मिळते. विकेट टू विकेट गोलंदाजी या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. 2 चेंडू पुन्हा डॉट आलेत. पुन्हा एकदा केलाय गोलंदाजानं कमबॅक. एक ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो 9 रन बने. दोस्तों आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2. सुबह के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. BC4 प्रेजेंट, BC4 कमेटी, उनके प्रेसिडेंट अल्ताफ बाली सर और बीपीएल के चेयरपर्सन लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे और पाइनियर और BC4 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से मुकाबला सुबह के सत्र में चलता हुआ गाँवदेवी 3 स्टार ठाकुरपाड़ा और सोना देवी बिहान मित कुमार के बीच में. और आज बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ग्रुप ए के आज काफ़ी अहम मैचेस है. आसमान में सामने बादल ज़रूर छाए हुए और क्रिकेट में इस वक्त भिवंडी प्रीमियर लीग छाया हुआ. ये चेयरपर्सन की बहुत खूबसूरत बैनर दिखाया जा रहा है, लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे. ये तमाम 18 टीमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और बीपीएल को एक हार की शक्ल दी. डगआउट में कोच, ओनर और मैनेजर ही बैठ सकता है. रिवर्स की कोशिश, बढ़िया गेंद. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. ऑल इंडिया नक्कीच ओपन मधून देखील आपल्याला एक प्लेअर पाहायला मिळतो. आणि कासिम बाबूनं मात्र भरपूर इम्प्रेस केला आहे. दरम्यान बीपीएल सीझन 2च्या माध्यमातून त्याचा भरपूर चांगला आणि सुंदर खेळ राहिला. चांगली बॅटिंग, चांगली गोलंदाजी बबलूसाठी. या दरम्यान हुक केला हा फटका. चांगला शॉट आहे. तिथे फिल्डर आहेत, पण ते बघत राहतील. जाईल चेंडू या दरम्यान स्वारला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. येत असताना हा बीपीएल षटकार. चांगला शॉट आपल्याला पाहायला मिळतो. कोटापदा चेंडू होता आणि स्ट्रॉंग झोन आहे बबलू पाटीलचा. ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था, बेहतरीन हुक शॉट. और क्या शॉट खेला है बबलू पाटिल ने. ये देखिए फिर से गेंद की लाइन के अंदर आए थे, एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से किया. शरीर का बैलेंस लाजवाब. अफलातून शॉट, गजब का स्ट्रोक. बबलू पाटिल ने भी तय कर लिया है आर या पार. मॅच देखील महत्वाची आहे आणि आता मध्ये तसंच खेळ करावा लागेल मैदानाच्या आतमध्ये बबलू पाटीलला.
आणि महेश ठाकरला जे सलामीला गेलेत पहिल्या इनिंगमध्ये आपण खूप चांगला खेळ प्रथमेश आणि मैदानाच्या आतमध्ये बघितला होता कुमार गोंडचा. कासिम बाबू आदरमान चांगला चेंडूने लगेचच मात्र रीपला दिला. सुंदर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. फुलर लेनचा होता. कदाचित चेंडूने बॅटचा संपर्क आला असावा आणि आता परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. कल्पेश अर्थातच बबलू पाटीलला लागणारा हा पहिला धक्का मैदानाच्या आतमध्ये. गावदेवी 3 स्टार्स ठाकूरपाडा या टीमला. Yes, I think worst stroke played by Bablu Patil, and this is the great delivery from Kasim Babu. He is the professional cricketer. Read the body language, follow the batsman, right on the block hole, and Bablu is out. The departure of first wicket, 15 for 1, and all run made by Bablu. New batsman in Akshay. अक्षय चौधरी नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. इनअप नंबर 3 वन डाऊनसाठी आलेत बॅटिंग करायला. सुरुवात दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये बघतो आपण चांगली झाली. विजयासाठी 80 धावांचा दरम्यान पाठलाग करायचा. मॅचमध्ये चांगला खेळ करावा लागेल. गावदेवी 3 स्टार्स ठाकूरपाडा या टीमला. धनुष्यंगण थोडंसं नक्कीच बाकफुटला आहे संघ. 3 मॅच नक्कीच कालच्या दिवसामध्ये खेळले. नक्कीच 3ही मॅचमध्ये अपयश आला. ही 4थी मॅच आहे. प्रयत्न नक्कीच करावे लागतील आणि चांगला खेळ आतापर्यंत सोनादेवी विहान मितकुमार टीमचा या मॅचमध्ये आपण बघितला. 3 मधून नक्कीच 2 सामने त्यांनी जिंकलेत आणि या देखील मॅचमध्ये आपल्याला चांगला खेळ त्यांचा पाहायला भेटला. देखिए राहुल, आपके पास बड़ा जब लक्ष्य रहता है तो आपको मोमेंटम रखना होता है. पुढचा चेंडू या दरम्यानचा हा फटका सुंदर आहे. आल्या आल्या आक्रमण सँड अँड डिलिव्हर पाठवलं चेंडू या दरम्यान स्वारलाख बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतो हा षटकार. अक्षय चौधरी ने भी तय कर लिया है आर या पार. क्या शॉट खेला है, विद द टाइट स्विंग कर दिया. जा रही है जा रही है जा रही है. हाई एंड सम 6 रन आउट ऑफ पार. चांगला शॉट आपल्याला पाहायला मिळतो. जागेवर या दरम्यान खडी खडी हा शॉट आपल्याला पाहायला भेटला. सँड अँड डिलिव्हर सुपर शॉट. अक्षय चौधरीच्या बॅटमधून संघाची धावसंख्या 6 न पुढे जाते. धावफलक आपल्याला एकूण पाहायला मिळतो 21 वरती. 21 इन बोट. कासिम बाबू चांगला शॉट आहे ऑफसाईडला. तिथे मात्र खराब फिल्डिंग झाली. डीप मधून मात्र भरपूर वेगानं फिल्डर येथे उचलून फेक करेपर्यंत महेश ठाकरेचा कॉल 2 धावांचा होता आणि दुसरी देखील धाव वेगानं कंप्लीट केली जाते. खराब फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळतं मैदानात. नक्कीच त्याचा फायदा आता मध्ये होत असताना दरम्यान फलंदाजी करत असताना फलंदाज अक्षय चौधरीला आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 23 इन बोट. 23 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. षटका दरम्यानचा दुसरा मार्गस्थ असताना पुढचा चेंडू दरम्यान हा देखील फुल टॉस. मात्र शॉट षटमान मध्ये तिथे राहुल आहेत. चांगले फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. तोपर्यंत मिळेल एक सिंगल. एकूण षटकं मात्र संपलेली आहेत. दरम्यानचे 2 षटकं संपलीत आणि डॉट बॉल आहे. दरम्यान षटकं एकूण संपलेली आहेत. 2 षटकं संपलीत आणि 2 षटकांच्या अखेरीस एक चांगली सुरुवात सिद्धिक आपण म्हणू शकाल. नक्कीच 23 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये आणि चांगला खेळ. यस, 2 ओवर की समाप्ति 23 रन 1 विकेट. भिवंडी प्रीमियर लीग की तीसरी सुबह में हमसे जुड़ती हुई को एंकर प्रेरणा गुप्ता, वेलकम. Good morning, everybody, all our viewers. I hope everybody is doing great. Good morning, भिवंडी. Happy Saturday. और अब बहुत ही बढ़िया रोमांचक मैच यहाँ हम देखते हुए. Welcome everybody to भिवंडी Premier League Season 2. एकूण 2 ओव्हरचा खेळ संपला. संघाची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवरती 23.
राजू बोगा, महेश ठाकरे साकिंग एंडला. या दरम्यान चांगला चेंडू, फिरकीची तुम्हाला गोलंदाजी पाहायला मिळेल मैदानाच्या आतमध्ये. स्विंग आणि मिस, चेंडूवाला डॉट. कमाल की गेंद थी, हवा में भी घुमाया था और बल्लेबाज को भी घुमाया. ये देखिए दोनों पैरों के बीच से चली गई, बिल्कुल विकेट के करीब से, विकेट कीपर के पास. चांगली गोलंदाजी राजू बोगाने मात्र BPL मध्ये केली आहे सीझन 2 मध्ये. चांगला चेंडू आहे, बॅक टू द बॉलर. काय फिल्डिंग, फॉलो थ्रू मध्ये आपल्याला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. जबरदस्त अफेक्ट मैदानाच्या आतमध्ये राजू बोगाच्या माध्यमातून. ऍक्शन रिप्ले स्क्रीन वरती. देखिए राजू बोगा एक ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत ही किलर स्टिक है. ये देखिए डाइव करके रोका, हालांकि ड्राइव किया था स्ट्रेट बैट से. फंटास्टिक. चांगली या दरम्यान आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते, सुरेख गोलंदाजी. पुढचा चेंडू, या दरम्यानचा चांगला चेंडू आहे ऑन साइडला. फटका आहे, दमदार धावा देखील दमदार मिळतील. जातो चेंडू या दरम्यान डीप वाईडिश, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. महेश ठाकरेच्या बॅटमधून हा षटकार. पलटवार देख रहे हैं, देखिए कितनी खूबसूरती से स्लॉक किया था, थोड़ा आगे रख दिया था राजू बोगा ने और गेंद वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन. चांगला शॉट आपल्याला पाहायला मिळतो. फिल्डरनं प्रयत्न केला, मात्र चेंडू त्याला बीट करून जातो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. या षटकाराच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या दरम्यान 6 पुढे जाते. 29 इन बोट. लॉस ऑफ 1. एक खेळाडू बाद. संघाची धावसंख्या 29 वरती. राजू बोगा, पुढचा चेंडू, लेफ्ट आर्म गोलंदाज. पुन्हा जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न ऑफस्टिक वरती. हा चेंडू नक्कीच बघतो आपण. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. विकेट टू विकेट गोलंदाजी आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये राजू बोगाच्या माध्यमातून. देखिए बोगा सुर और ताल में रहे तो इनकी गेंदबाजी इब्ने सफी के नॉवेल की तरह सस्पेंड रहती. पुढचा चेंडू, फुल टॉस आहे. त्याच्या दरम्यान फायदा मात्र महेश ठाकरेला घेता आला नाही. ऑन साइडला स्क्वेअर मध्ये दरम्यान फिल्डिंग. यस, बैट्समैन ने रिव्यू मांगा है बीमर के लिए. बैट्समैन ने रिव्यू मांगा है. और तीसरे अंपायर का निर्णय है कि गेंद फेयर डिलीवरी है. अंपायर फारूक बर्डी. हरीश पंड्या उनके उस स्टेप को माइकल जैक्सन स्टेप कहते हैं. मुझे तो कभी कभी लगता है कि मानो इंग्लैंड के किसी खूबसूरत चौराहे पे कोई कैप पहने स्टैचू खड़ा हो. अदा अपनी अपनी, अंदाज अपना अपना. और सिल्वर आर्म्स ऑफ निज़ामपुरा रहे थे, बहुत मशहूर ऑलराउंडर रहे थे सिटी क्रिकेट के. संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्डवरती 30 धावा आहेत. विजयासाठी या मॅच मध्ये आपण बघतो 80चं टार्गेट आहे. यस, तीसरा ओवर चल रहा है, हालांकि पिछड़ रही लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत. महबूब गौरी साहब राजस्थान रॉयल के ऑनर हमारे बीच पहुंच चुके हैं. इस्तकबाल है, मोस्ट वेलकम. मैं अक्सर कहता हूं कि बाहर हो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है. हमारे बहुत ही अजीज महबूब गौरी साहब, वेलकम. चांगला चेंडू, फटका देखील चांगला आहे. खोदून काढला फटका, लेग आफ्टर शॉट. इथे उपस्थित आहेत. फिल्डिंग दरम्यानची सुंदर झाली. चांगली फिल्डिंग आपल्याला आउटफील्ड मध्ये पाहायला मिळते. चेंडू एकाच ऍक्शन उचलून फेक करेपर्यंत फक्त सिंगल. कमाल की फील्डिंग, जंप लगा के रोका था. तीन ओव्हरचा खेळ संपल्याने 3 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 31 धावा स्कोर बोर्डवरती. मैदानाच्या आतमध्ये दरम्यान बॅटिंग करत असताना आता मात्र महेश ठाकरेनं 7 बॉलमध्ये 7 केल्यात. अक्षयने नक्कीच आतापर्यंत 4 बॉलमध्ये 9 धावा त्यांनी बनवल्यात. 80चं टार्गेट आहे, अजूनही विजयापासून भरपूर दूर आहे. या दरम्यान 3 स्टार्स गावदेवी स्पोर्ट्स ठाकूरपाडा प्रयत्न करावे ते मात्र अजूनही 3 षटकं बाकी आहेत. मग आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये करूया बदल. ऐकूया पुन्हा एकदा आमच्या नक्कीच
सहकारी समालोचक मित्र सिद्दीकजी बावे सरांचा बाज. धन्यवाद राहुल भोईर. भिवंडी प्रीमियर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. सामने अब गहरे बादल छाते हुए हमारे सामने बिल्कुल हमारे गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपाड़ा के ओनर दत्तात्रेय साहब का आगमन हो चुका है. आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है बीपीएल की सुहानी सुबह में. अगला मुकाबला एफएस एंटरप्राइजेस राजस्थान रॉयल. महबूब गौरी फेम टीम राजस्थान रॉयल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे बालाजी ग्लोबस सोना देवी व्यान मित कुमार. उसके बाद एफएस एंटरप्राइजेस गावदेवी 3 स्टार और ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला आगरी राजा पोगांव राजस्थान रॉयल. आइकॉन खिलाड़ी आईपीएल खिलाड़ी हमारे बीच कामरान खान पहुंच चुके हैं. आपका भी इस्तेकबाल है. मोस्ट वेलकम. मौसम ने अब करवट ली है और बीपीएल का ग्रुप ए भी तो यहाँ करवट ले रहा है. 18 गेंदों में 49 रन चाहिए. हालांकि विकेटों को देखें तो 9 विकेट हाथ में इस वक्त गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपाड़ा के आने वाले बल्लेबाजों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए फाइक अंसारी, बुम बुम सुभाष ठाकरे. गेंदबाजी में कंटिन्यू रखा गया है कासिम बाबू को. कासिम बाबू ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था पहले बीपीएल में भी. लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स. इस मरतबा खड़े खड़े गेंद को खेल दिया. आउटफील्ड में 1 रन बना है और 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं. धीरे धीरे आस्किंग रन रेट बढ़ता हुआ. सिंगल डबलने काम देखील जमणार नाही. इथं मोठ्या फटक्यांची गरज आहे कारण का टार्गेट एकूण 80च आहे. त्या अनुषंगाने हे करावं लागेल सिद्दीकजी. कासिम बाबू अभी तक 8 विकेटें हासिल कर चुके हैं बीपीएल सीजन 2 में. बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑन थोड़ा स्ट्रेटिश करा है इसलिए जल्दी गेंद उनके पास पहुंची. सिर्फ 1 रन. आपल्याला पाहायला मिळते कासिम बाबूच्या माध्यमातून विकेट टू विकेट गोलंदाजी. कुठल्या प्रकारची संधी दिली जात नाहीये फलंदाजाला. या दरम्यान कासिम बाबूच्या माध्यमातून सुंदर तो गोलंदाजी करतोय या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये. कासिम बाबू लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए. फुल टॉस गेंद चढ़ गई है बल्ले पर. पीछे खिलाड़ी है और देखना है आउट होके जा रहे हैं बैट्समैन. बढ़िया कैच लिया था. ज़्यादा बल्ले पे चढ़ गई थी गेंद और ताकत नहीं मिली थी. डीप में मेरे ख्याल से कैच को पकड़ा है प्रथमेश ठाकरे ने. कारण का कॉलिंग दरम्यान प्रथमेशची नव्हतीच. झेल घेण्यासाठी ऑलरेडी ते नक्कीच खेळाडू उपस्थित होते. मध्ये प्रथमेश भरपूर वेगाने आले आणि हा सुंदर झेल एक जबरदस्त आपल्याला झेल पाहायला मिळतोय. आणि दुसरा धक्का मैदानाच्या आतमध्ये या दरम्यान फलंदाजी करत असताना गावदेवी 3 स्टार्स ठाकुरपाड़ा संघाला. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं. हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी. देखिए ये फाइक अंसारी की परीक्षा है, वो भी अग्नि. ये देखिए किस तरह से आउट हुए थे. फुल टॉस गेंद थी, ज़्यादा बल्ले के ऊपर लगी. बहुत बढ़िया जज किया पीछे प्रथमेश ठाकरे ने. 33 रन 2 विकेट. चौथा ओवर चल रहा है. 80 के लक्ष्य का पीछा कर रही है गावदेवी 3 स्टार. कासिम बाबू अब तक 9 विकेटें ले चुके हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में और 9वीं विकेटें हेमंत हरा टॉलमैन ने लिए. इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश. जमीन के सारे आउटफील्ड में गेंद गई है. 1 रन बनता हुआ. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 34 रन. आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं और धीरे धीरे
कठिनाई के बादल भी छाते हुए, क्योंकि बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपाड़ा के लिए। कासिम बाबू इस मरतबा आगे रखा था, बॉलर बैक ड्राइव पैरों से गेंद रिकोशेज हुई, 1 रन बना, दूसरे की कॉल है, लेकिन ओ महेश ठाकरे को बहुत ही चतुराई से आउट किया वहां पर विकेट कीपर राहुल म्हात्रे ने। राहुल म्हात्रे बघताना गीत दरम्यान हुशारी दाखवत असताना मैदानाच्या आतमध्ये दाखवावे देखील लागते. महेश ठाकरेनं प्रयत्न केला, कॉलिंग दरम्यान फाईकची तर होती, मात्र महेश ठाकरे नकार दिल्यापर्यंत मात्र नक्कीच राहुल ठाकरेच्या माध्यमातून चांगलं क्रिकेट आणि फलंदाज अजून एक होतील बाद. महेश ठाकरे बॅक टू द पवेलियन. नए बैट्समैन बूम बूम सुभाष ठाकरे, देखिए ये वो जोड़ी है जो ओवर में 30 भी बना सकती है और ओवर में 10 से कम भी बना सकती है, क्योंकि दोनों बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. सिक्सर के सुल्तान इस वक्त सुभाष ठाकरे. आणि चांगला खेळ आता मात्र करावा लागेल मैदानाच्या आतमध्ये. हाँ चांगला शॉट आपल्याला पाहायला मिळतो, फुल टॉस पाठवलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बुम बुम सुभाष ठाकरेच्या बॅट मधून हा विकेट 6 शुरू हो गए वहीं से जिसके लिए वो जाने जाते हैं. बूम बूम 6. चांगला शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय, फुल टॉस होता आणि सँड अँड डिलिव्हर एक चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो सुभाष ठाकरेच्या बॅटमधून. असेच फटके खेळावे लागतील कारण का टार्गेट भरपूर मोठा आहे. 80 धावसंख्येचा पाठलाग या मॅचमध्ये गावदेवी 3 स्टार साखरपाडा हा संघ करतोय, त्या अनुषंगाने खेळ होणं गरजेचं आहे. आणि आता मात्र आक्रमक काही आपल्याला फटके पाहायला नक्कीच मिळतील कारण का फाईक अन्सारी आणि सुभाष ठाकरे दोन चांगले फिनिशर आहे सिद्दीकजी मैदानाच्या आतमध्ये. यस, एक ही बात कहूंगा कि ये दोनों जो बैट्समैन हैं इसी तरह के शॉट के लिए जाने जाते हैं. अगर ये चल गए तो फिर गेंदबाजी बेहाल हो जाएंगी. ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है, 41 ओवर बचे हैं, 2 रन चाहिए 39. अल्पेश गायकवाड गजब की इस वक्त स्कोरिंग कर रहे हैं. साहिबा मोमिन, ये वाकई में स्कोरिंग की भी A1 जोड़ी है. राजू बोगा, देखना है ये ओवर दोनों टीमों के लिए करोड़ मरो का ओवर है और इस ओवर में साफ हो जाएगा कि इस मैच में जीत की तरफ कौन बढ़ रहा है. बहरहाल जीत होती हुई भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 की, जीत होती हुई BC4 की, जीत होती हुई उनके प्रेसिडेंट अल्ताफ बाली सर की, जीत होती हुई BPL के चेयरपर्सन संजय मात्रे जी की, जीत होती हुई पायनियर स्पोर्ट्स की, और जीत होती हुई हमारे 18 बहुत ही इज्जत माप हमारे तमाम ओनर्स की. खेल की शुरुआत राजू बोगा, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए खड़े खड़े गेंद को खेल दिया डाउन द ग्राउंड. योगी थे और ये जश्न देखिए राजू बोगा का फाइक को आउट करने के बाद. बढ़िया कैच. यस, ये होना भी चाहिए. सेलिब्रेशन आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतं मैदानाच्या मध्ये. राजू बोगाच्या माध्यमातून तुम्हाला ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळेल. चेंडू जास्त नक्कीच मिळतं म्हणाल हवेमध्ये होती आणि जास्त उंच गेली दरम्यान, त्याच कारणानं हा सोपा जाईल आणि फाईक अन्सारी मैदानाच्या मध्ये फेल. देखिए बड़ी बात है कि बहुत दूर से खेले थे, वहां पर गेंद के करीब नहीं थे जब शॉट को खेला था उन्होंने. और नए बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए इस वक्त हुसैन जा रहे हैं. हालांकि एक मैच ऐसा ज़रूर है जहां पे 4 पे 4 सिक्सर लगाए डेथ ओवर में कल, लेकिन कहाँ जाता है ये वो समय है राहुल जहां आप सांस लेके बल्लेबाजी नहीं कर सकते, दम लेके बल्लेबाजी नहीं कर सकते,
ये हो सकता है कि गेंदबाज का दम निकाल दे. डेफिनेटली तसंच काय करावं लागेल, कारण का आता एवढी वेळ नाहीये, कारण का 11 चेंडू आहेत आणि 11 बॉलमध्ये तब्बल 39 धावा बनवायच्या. त्या अनुषंगानं कॅल्क्युलेशन क्रिकेट खेळावं लागेल बुम बुम सुभाष ठाकरेला मैदानाच्या आतमध्ये. राजू बोगा अच्छा बयान दिया था कि क्रिटिसाइज करने वालों ने ही मुझे ऊपर लाया है. कह दिया कि राजू बोगा, देखिए क्लास नहीं मरता है, फॉर्म आता जाता रहता है. अगर फॉर्म नहीं है तो नहीं है, लेकिन वापस आ जाएगा. क्लास तो है. निकल के मारा है और ये है सुभाष ठाकरे, पहुंचा दिया बोगा को डाउन द ग्राउंड 6 रन. और राजू बोगा भी सुभाष ठाकरे को देख रहे, क्या शॉट खेला है. ये इज्जत है, ये क्रिकेट है भिवंडी का. क्लासिकल शॉट आपल्याला पाहायला मिळतो. सुपर फटका होता सँड अँड लेवरचा समोरच्या दिशेनं, बरोबर नक्कीच साहेबानं मात्र झेल मिस केला आहे बा कॅच. ये देखिए बूम बूम सुभाष ठाकरे सिक्सर के सुल्तान, 2 में 2 सिक्सर लगा चुके हैं. राजू बोगा सुभाष को बहुत दूर रखा था वाइट. 1 रन आता हुआ स्कोर में. स्कोर 48 रन. यहां से 32 रन और चाहिए. 10 गेंदे. सुभाष ठाकरे जब तक रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है. इस गेंद के बाद उनका रिकॉर्ड यहां पे मैं आपको बताऊंगा. ओ बढ़िया गेंद, अपील और आउट. क्या गेंद थी जिसका कोई जवाब नहीं था. एज एंड गॉन. देखिए सुभाष ठाकरे का इस मैदान पे रिकॉर्ड है कि हमारे जो आजकल राज्य मंत्री, देखिए टर्न एंड बाउंस कपिल पाटिल साहब हैं, उनका यहाँ पे जेडपी कप 2013 में हुआ था. एक इनिंग में ग्रामीण से खेलते हुए सुभाष ठाकरे ने 13 सिक्सर लगाए, जो अभी तक ग्रामीण का रिकॉर्ड है. जबरदस्त प्रतिमा खेळाडू आहे आणि या विकेटसाठी सेलिब्रेशन देखील तेवढंच होतं. राजू बोगाचा मैदान शॉटमध्ये 2 चेंडू 2 षटकार सुभाष ठाकरेच्या बॅटमधून ऑलरेडी आले होते. और जश्न इसलिए किया कि दोनों मैच विनर प्लेयर को उन्होंने आउट किया. पहले फाइक, फिर सुभाष ठाकरे. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को हुसैन का साथ निभाने यतीश ठाकरे, ये भी बहुत अच्छे स्ट्राइकर है. बहुत मुश्किल कैच लिया था विकेट कीपर वीरेश ने. इस तरह का एज लेकर गेंद जब आती है, टर्न और बाउंस होती है, तो बहुत मुश्किल रहता है. राजू बोगा, नो बॉल. ये तो कोई ऐसा मैच नहीं है जिसमें इन्होंने ओवर स्टेप ना किया हो. एक तो करते ही है. फ्रीट. संघाची एकूण धावसंख्या झाली आतापर्यंत 50 झाल्या आहेत. विजयासाठी अजूनही 30 बनवायच्या आहेत. कितनी गेंदें बची अल्पेश? 9-30. फ्रीट है. सामना करने जा रहे बैट्समैन हुसैन अच्छे टच में है. इस मरतबा खेल दिया है गेंद को आउटफील्ड में. 1 रन बनता हुआ स्कोर में. स्कोर आगे सरकता हुआ 51 रनों पे पहुंचा है. धीरे धीरे मुश्किलात अब बढ़ती हुई. नक्कीच आता मात्र विजयापासून भरपूर दूर अजूनही आहे. मैदानात शॉटमध्ये गावदेवी, 3 स्टार्स, ठाकूरपाडा हा संघ प्रयत्न करावे लागतील. बोगा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर. फेंक दिया मैदान के बाहर. ह्यूज हिट. 6 रन. ऊंची बैकलिफ का इस्तेमाल, ऊंचा स्ट्रोक, और गेंद बल्ले से निकली तो उस पे मोहर थी 6 रनों की. यतीश ठाकरे. मॅच अजूनही संपली नाहीये. दरम्यान सिद्दीकजीच्या अनुषंगाने मात्र प्रयत्न सुरू आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये मोठे फटके अजूनही येत आहेत आणि यतीश ठाकरे मोठ्या फटक्यांसाठी जाणला देखील जातो. एक चांगला फिनिशर आहे आणि आता मात्र प्रयत्न त्याचे देखील सुरू झालेत. चेंडू दरम्यान शिल्लक आहेत. हमारे बीच एफएस एंटरप्राइजेस के ओनर फैसल शेख साहब आए हैं. आपका
अमी के दिल से इस्तेकबाल है। कितनी गेंदें कितने रन? 7-23। मैच अभी भी बना हुआ है। क्रिकेट कॉलर ग्लोरियस अनसर्टिनिटी गेम। दत्ता तरे साहब है, महबूब गौरी है, फैसल शेख है। ये 3 ओनर काम अमी के दिल से इस्तेकबाल करते हैं। कीमती गेंद बोगा, आगे क्या होगा? ये हुआ है, ये आसमान में है लेकिन अंदर है। आखिरकार तीसरा विकेट बोगा ने चटका लिया और इस ओवर में सिक्सर उनको 2 लगे, लेकिन ओवरऑल अच्छा ओवर। नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल स्क्रीनवरती चिंटू जास्त उंच गेला आणि तिथे सुंदर झेल देखील. देखिए कहीं ना कहीं गेंद रुक के आई थी। हेमंत अरट ने 9 विकेट लिए, कासिम बाबू ने 9 विकेट लिए और 8 विकेट राजू बोगा के नाम बीपीएल में। चांगली चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. आणि आता मात्र इक्वेशन जर बघितलं नक्कीच ये आप देख सकते हैं क्या सुंदर टेलीकास्ट है। मोस्ट विकेट टेकर्स इन बीपीएल, हेमंत अरट, आगरी राजा पोगांव 9 विकेट, कासिम बाबू, सोना देवी वियान, मित कुमार 9 विकेट, राजू बोगा, सोना देवी वियान 8 विकेट, वैभव माली राजस्थान रॉयल 7 विकेट, फाइक अंसारी गावदेवी 3 स्टार 7 विकेट, सूरज केने बालाजी गुलोबस 5 विकेट, अजय पाटिल बालाजी गुलोबस 4 विकेट, सागर भोईर बालाजी गुलोबस 4 विकेट, दीपक मडवी एफएस एंटरप्राइजेस 4 विकेट और सुहास पवार आगरी राजा 4 विकेट। सैल्यूट है प्रिंस मूवीज, द किंग ऑफ टेलीकास्ट। मोस्ट रन मेकर्स केतन मात्रे बालाजी गुलोबस 111, सूरज केने बालाजी गुलोबस 103, उमर खान एफएस एंटरप्राइजेस 75, प्रथमेश ठाकरे सोना देवी विहान मित कुमार 74, प्रतीक भुईर आगरी राजा 69, प्रीतेश पाटिल आगरी राजा 53, कुणाल मात्रे राजस्थान रॉयल 49, कुमार गुण सोना देवी 48, शेखर दलवी आगरी राजा 44 और अजय भुईर आगरी राजा 39। ये हाईएस्ट विकेट टेकर्स एंड हाईएस्ट रन मेकर्स इन बीपीएल। पहली गेंद डॉट होती भी चांगला चेंडू या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतोय. केतन किसन मात्रे या षटकामध्ये. गेंदबाजी के लिए आते हुए किशन मात्रे राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मर्तबा खराब गेंद थी लेकिन फायदा उठा दिया है, गेंद को खेल दिया है खाली क्षेत्र, वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। खराब चेंडू आणि त्याच्यावरती हा चांगला शॉट देखील येतोय प्रमोद मात्रे. सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रथमेश आपने बताया ये हमारे स्कोरर साहिबा मोमिन के स्टैटिक से भी मिलता जुलता सेम। थैंक यू। ये चाहिए कोऑर्डिनेशन। हालांकि अल्पेश गायकवाड नो डाउट एट ऑल सारा लेखा जोखा वो भी हम तक पहुंचा रहे हैं। जब A1 जोड़ी स्कोरर की हो और टेलीकास्ट A1 हो तो सुपर से ऊपर लीग तो होगा ही। इस मर्तबा खींच के मारा है, गेंद स्क्वायर लेग पे मस्तक पे दस्तक, 6 रन। प्रमोद मात्रे ने कहा है मैच खत्म नहीं हुआ है, सांस है तो आस है। कितने गेंदे? 3-13 और 7 निभा रहे मेरा राहुल भोईर। मॅच अजूनही संपली नाहीये आणि सांगत असताना मैदानाच्या आतमध्ये प्रमोद मात्रे अनुभव मात्र त्यांच्याकडे भरपूर आहे आणि तो आता मात्र अनुभव सिद्ध करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये जबरदस्त हा फटका होता. 3 चेंडू त्याला धावीची गरज आहे मॅच मध्ये. क्रीज में पीछे खेल रहे थे, गेंद को आने दिया, इंतजार किया और वार किया। आज दोस्तों मेरे साथ महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय करत हैं, मानेरी की आवाज राहुल भोईर, कमेंटेटर मजहर खान। पहला मुकाबला ही बहुत ही जबरदस्त चलता हुआ। किशन मात्रे प्रमोद मात्रे के लिए
उछाल दिया गेंद को, क्या कैच हो जाएगा? यस। हालांकि पिछले बीपीएल में एबी स्पोर्ट्स को जिताने वाले खिलाड़ी प्रमोद मात्रे यहां ड्रॉप सीन के हीरो नहीं बने। अब 2 गेंदे 13 रन, 2 पे 2 आए तो सुपर से ऊपर लीग में पहला सुपर ओव्हर देखेंगे हम। न प्रयत्न नक्कीच असेल मैदानाच्या आतमध्ये. 3 चेंडू 13 धावेची गरज होती. प्रमोदने प्रयत्न केला मात्र प्रमोदला अपयश. आणि आता मात्र 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 13 धावेची गरज आहे. 2 षटकार आले तर आपल्याला या दरम्यान बीपीएल मध्ये सुपर ओव्हर नक्कीच पाहायला मिळेल. यस, मुकाबला क्या हो रहा है, पल पल करवट बदलता मुकाबला ऊपर नीचे चल रहा है। जिस तरह इंग्लैंड के स्क्वायर पे अभी अभी उस घड़ी का काम हुआ था पिछले साल, पिछले महीने, वो जो घड़ी है इंग्लैंड की शान कही जाती है और बीबीसी लंदन जब आता है तो उसी की टोन को बताया जाता है। उस पेंडुलम की तरह कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मैच अभी भी बाकी है, सामना करें बैट्समैन हुसैन। ये बीपीएल है, ये सुपर से ऊपर लीग है। कई लीग सुपर रहे थे लेकिन ये सुपर से ऊपर है। कमाल का मुकाबला चलता हुआ देखना है कि फील्डिंग को कप्तान ओएस अभी सजाते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए हुक किया है। कहानी में ट्विस्ट, गेंद स्टैंड में 6 रन। काय शॉट होता, जबरदस्त आपल्याला शॉट पाहायला मिळतो. मॅच मध्ये आता मात्र पुन्हा एकदा वापसी झाली आहे, कारण का 1 चेंडू शिल्लक आणि विजयासाठी 7 धावेची गरज. षटकार आला तर मग आपल्याला पाहायला मिळेल बीपीएल मध्ये सुपर ओव्हर. कहानी में ट्विस्ट, मैच होता हुआ सुपर हिट और हुसैन भी मानो पीछे पड़ गए किशन मात्रे के। बादल जितने गहरे होते जा रहे हैं मैच उतना ही रोमांचक हो रहा है। व्हाट अ मैच। कमजोर दिल वालों के लिए मैच नहीं बचा है, खासतौर से गावदेवी 3 स्टार के सपोर्टर्स और सोना देवी विहान मित कुमार के। दिनेश चौधरी डगआउट में अब थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। इस तरह की तो उनको आदत है, इस तरह के मैचेस की उनको आदत है, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। ये ऐसे स्पॉन्सर है, सिटी क्रिकेट में भी इस तरह के मैचेस की उनको आदत पड़ गई है। 2 खिलाड़ी सामने लगा दिए गए, लेकिन मैच को जीत लिया है इस वक्त सोना देवी विहान मित कुमार ने। कॉन्ग्रेचुलेशन दिनेश, रोहित चौधरी एंड ऑल टीम, हार्ड लक। गावदेवी 3 स्टार, दत्ता तड़े, महेश एंड सुभाष। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बीपीएल की तीसरी सुबह में इस वक्त मेरे साथ जुड़ती हुई को एंकर प्रेरणा गुप्ता। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे सारे व्यूअर्स जो हमारे साथ यहाँ यूट्यूब के थ्रू और स्टेडियम में जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है टू भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैच सर, मजा आ गया मुझे तो देख के। यस, मैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए महबूब गौरी साहब, दत्ता तरे साहब, फैसल शेख साहब और सागर ठाकरे साहब, इन चारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ जाना है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, 22 गेंदों में अर्धशतक,
प्रथमेश ठाकरे कम फॉरवर्ड। जोरदार तालियां प्रथमेश ठाकरे Yes. के लिए। सागर ठाकरे आ चुके हैं, महबूब गौरी आए हैं। फैसल शेख साहब आपको जुड़ जाना है प्लीज। यस वेलकम। तमाम मेहमानों से रिक्वेस्ट है, आइए अर्धे शतक। एक मिनट, गिव टेम्पर है। सबसे पहले हम गिफ्ट टेम्पर देने जा रहे हैं महबूब गौरी साहब राजस्थान रॉयल के ओनर के हाथ से। दी ड्रीम होम मेट केक, वो केक जो आपकी वाकई में ख्वाबों और तमन्नाओं को ऊपर लाए किसी भी ओकेजन में, उसको देने के लिए इस वक्त सागर ठाकरे। मिस्टर ठाकरे टू मिस्टर ठाकरे। देखिए, फैशन की दुनिया में चार चांद लगाना हो तो फिर लापास बुटीक जरूर से आएगा। फैसल शेख साहब, अनीस अंसारी और वसीम अंसारी और रियल स्टील की देन, ये आपकी पर्सनालिटी में। आखिर में हमारे ओनर गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपारा के दत्ता तरे साहब, पल्लन भाई की ये खूबसूरत देन एक्रेलिक आर्ट 2। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। कैसा लग रहा है ऑन दिस विन ऑफ मैन ऑफ द मैच? बहुत बड़ा ये होता है मैन ऑफ द मैच, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मैन ऑफ द मैच मिलके। बहुत मजा आ रहा होगा। किस चीज को डेडिकेट करना चाहोगे अपनी ये आज की विन? मेरे सपोर्टर्स को। जितने सपोर्टर्स हैं और वो लोग जो आपके फीमेल सपोर्टर्स हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? फीमेल फैन फॉलोइंग यहाँ पे आपको देख रही हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? आर यू सिंगल? सिंगल। सिंगल एंड रेडी टू मिंगल ऑल द फैन फॉलोइंग ऑफ फीमेल्स? यस। देखिए प्रथमेश, मैं अलग सवाल करूंगा। पहले ये बताइए कि भिवंडी प्रीमियर लीग को आपने किस तरह एंजॉय किया? बहुत तरह से इंजॉय किया। अच्छा टूर्नामेंट है, पहली बार इधर हो रहा है। पिछली बार तो उधर हुआ था गोस्तर में, उधर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता था। इस साल अच्छा खेलने का प्रयास किया और अच्छा खेल गया। विकेट के बारे में आपकी क्या राय? अच्छा विकेट मारती विकेट में खेलने को मजा आता है। तो ये क्लास की परीक्षा थी और आपने पास की। ये थे दोस्तों मैन ऑफ द मैच प्रथमेश ठाकरे। मैं सिद्दीक बाबे को एंकर प्रेरणा गुप्ता के साथ आपको वापस लिए चलता हूं कमेंट्री बॉक्स में, जहां राहुल भोईर और सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत मौजूद है। धन्यवाद सिद्दीक जी और प्रेरणा गुप्ता। स्वागत सभी दर्शकों का एक बार फिर से भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में। आज तीसरा दिन और इसी बीच भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमेटी के चेयरपर्सन जनाब अल्ताफ बाली साहब हमारे बीच में पहुंचते हुए आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत तीसरे दिन के खेल में। और उनके द्वारा ही इस टूर्नामेंट को प्रस्तुत किया गया है। BC4 और अल्ताफ बाली साहब द्वारा इस टूर्नामेंट को आयोजित किया है पायनियर स्पोर्ट्स ने। आज का दूसरा मैच जिसकी तरफ हम रुख कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है FS एंटरप्राइजेस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ राहुल भोईर है। राहुल, पहला मैच ज़बरदस्त रहा, कल भी इसी अंदाज में शुरुआत हुई थी। कल भी पहला मैच काफ़ी रोमांचक स्थिति में पहुंचा था और आज भी उसी तरह की शुरुआत हुई है। एक्साइटमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है BPL सीजन 2 में। डेफिनेटली नक्कीच आपण अजय घरात सीझन 1 मध्ये देखील आपण असंच बघितलं BPLच्या माध्यमातून. आता मात्र सीझन 2 ला सुरुवात झाली आहे. तुम्हाला प्रत्येकी मॅच अशीच पाहायला मिळेल, कारण का भिवंडीचं क्रिकेट